Dirac delta function. The Dirac delta function is defined as the one-dimensional Dirac delta function can be pictured as infinitely high and infinitely small narrow spike with area equal to 1. What does it means? If a Dirac delta function is defined at x is equal to 0, देन x इज इक्वल टू 0 पे एक ऐसा स्पाइक होगा, स्पाइक मीन्स इंक्रीमेंट, जिसका वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा और इस स्पाइक का जो एरिया होगा इस अंडर का, वो एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा. इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन. मैथमेटिकली द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैन बी रिटन एज delta x is equal to infinity at x is equal to 0. इस पॉइंट पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी है, और एल्स बाकी इधर और इधर बाकी दूसरे सभी पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा जब एन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज वन पार्ट ऑफ definition of Dirac delta function. Next part is, it says that the area under the curve is equal to 1. So area minus infinity to plus infinity delta x dx is equal to 1. This is the mathematical form of Dirac delta function. Now other particular case, if there is small increment, अगर मान लें कि ये डेल्टा x is equal to 0 से small part इधर लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में भी ये कर्व अगर है, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 0 plus in epsilon, 0 minus epsilon, where epsilon is very small positive number, then also this equation is acceptable and it is also defined. Now अभी हम लोग यहाँ डिफाइन किए x is equal to 0 पे. Now next, translated Dirac delta function. If Dirac delta function is defined at x is equal to some point like x is equal to a, it is not defined at x is equal to 0, now it is defined at x is equal to a. So there is a infinite spike at x is equal to a. So this time it is called translated. Translated, that means it is translated, that means shifted from x is equal to 0 to x is equal to a. So in this case Dirac delta function is written as delta x minus a is equal to infinity when x is equal to a and is equal to 0 elsewhere where x is not equal to a. This is called translated Dirac delta function. And second part of it is the area under the curve, that is minus infinity to plus infinity delta x minus a dx is equal to 1. This is the definition of translated Dirac delta function. Next is, which is very important, the Dirac delta function is not a legitimate function. What is meaning of legitimate? It is not a legal function, because we know that the value of delta x at x is equal to 0 or x is equal to a is infinity, and infinity is not a defined quantity, it is not a finite quantity, so it is not a legal function. So we call it a distribution function. Next is the properties of Dirac delta function. The first property is minus infinity to plus infinity fx delta x dx is equal to f of 0. How we conclude that? Since delta x is defined at x is equal to 0, यहाँ delta x जो है किस पे क्या define है, x is equal to 0 पे, and x is equal to 0 is lies between minus infinity plus infinity. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में x is equal to 0 का टर्म हमको मिलेगा. So here the function f will be equal to f of 0, where x is 0, which is lies between minus infinity to plus infinity. Next, for translated Dirac delta function, minus infinity to plus infinity fx delta x minus a dx is equal to f of a. Here delta x minus a is defined at where x is equal to a,
and x is equal to a is lies in between minus infinity to plus infinity, so the value of f of x is equal to f of a. तो इसका वैल्यू क्या होगा, f of a. ये हो गया इसका सेकेंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज थर्ड प्रॉपर्टी. इफ the Dirac delta function is delta x minus c a to b, so here Dirac delta function is defined at x is equal to c. जब भी हम लोग Dirac delta function को यूज़ करते हैं तो अंदर का जो ये टर्म होता है इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं. तो जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो x माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू सी. तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसके पहले के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए अगर ये a हुआ करता था तो हम लोग a लिखते थे, तो इसका ऑब्वियसली वैल्यू c होगा. लेकिन किस कंडीशन पे, जब ये c a और b के बीच में लाइज करो, तो ये a लाइज बिटवीन a एंड b. ऑल्सो c इज ए एलिमेंट ऑफ इंटरवल a एंड b. If this c is not lies between a and b, then in this case its value is 0. So it is also written as c is not element of interval a and b. Now property number 4, delta kx is equal to, k is any real number, 1 by k mod of k delta x. Property number 5, delta of minus x is equal to, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे. x के आगे में क्या है, -1, तो -1 का मॉड k का वैल्यू -1 हो गया डेल्टा x, और हम लोग जानते हैं -1 का मॉड क्या होता है, 1, so this is delta x. So since we know that if a function of minus of x is equal to this function is positive quantity, then that type of function is called an even function. So delta x is an even function. Next, property number 6 is minus infinity to plus infinity f x delta to the power n x minus a dx, where delta n x minus a is the nth order derivative of delta x minus a, so which is equal to minus 1 to the power n f n a. Okay. Next, number 7, it is symmetry property. Since we know that delta of minus x is equal to delta x, so we can write delta a minus x is equal to delta x minus a. Now, it is also a property when we use this property, this formula. So Dirac delta function of function. So let the function is gx and it is delta of gx, which is equal to summation I is equal to 1 to n delta x minus xi mod of g dash, this is first order derivative, g dash xi. What is xi? Xi is the root of the function when function gx is equal to 0, and g dash x is the first order derivative of gx. अब फाइंड करेंगे हम लोग डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स का लीनियर इक्वेशन नहीं है. लीनियर इक्वेशन के लिए तो हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को ये प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा. सो हेयर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट the first order derivative of gx, which is equal to 2x, as a square is constant. Now to find the root, that is xi, we have to put gx is equal to 0. So x square minus a square is equal to 0, x square is equal to a square, so x is equal to plus minus a. So first root is plus a, second root is minus a. So using this formula we can write delta x minus a g dash when x is equal to 0 a mod plus delta second root is minus plus x plus a g dash x when x is equal to minus a mod. So delta x minus a g dash x is equal to a. What is g dash x? 2x. Here a is x is equal to a, so ये 2a हो जाएगा, और यहाँ a का वैल्यू है माइनस ए, तो ये हो जाएगा -2a. अब हम लोग जानते हैं कि मॉड
पॉजिटिव क्वांटिटी का तो सेम रहता है लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी का भी पॉजिटिव हो जाता है। दोनों में कॉमन क्या है गया, 1/2 है, 1/2 है कॉमन, डेल्टा एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस ए, ये इसका वैल्यू हो गया। नेक्स्ट अदर एग्जांपल, डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कैसे बनाएंगे? हियर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, so g dash x is equal to 2x minus 3, first order derivative of this function. Now to find the root, we have to put gx is equal to 0, that is x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Now solving this, we get x is equal to 1 and x is equal to 2. So delta x square minus 3x plus 2 is equal to delta x minus 1 divided by g dash x minus x is equal to 1, first root, and second root is 2, so delta x minus 2 g dash x is equal to 2. Putting this, g dash is equal to 2x minus 1, so पहली बार में हमको 1 पुट करना है, 1 पुट करेंगे तो 2 minus 3, this is equal to minus 1, and next बार में 2 into 2 4, 4 minus 3 is equal to 1, so यहाँ पे 1, minus 1 का mod 1, ये तो 1 ही रहेगा, so ये हो गया डेल्टा x minus 1 plus डेल्टा x minus 2. This is two example of second order or quadratic Dirac delta function. Next is the dimension of Dirac delta function. Since we know that this is x minus a, this is the dimension of length, so the dimension of Dirac delta function is equal to 1 by length, that is L inverse. If Dirac delta function is represented in form of momentum, then its dimension is 1 by momentum. So the dimension of Dirac delta function is equal to inverse of dimension of argument. This is argument, so inverse of dimension of argument. Next is step function and its derivative. So what is step function? Step function is just like when value of x is equal to 0, its value is 1, so the value when x is greater than 0, its value is 1, and when x is less than 0, its value is 0. So it is step function, just like a step, सीढ़ी के अनुसार, हिंदी में हम लोग इसको सीढ़ी भी कह सकते हैं, तो ऐसे स्टेप जैसा हमारे होता है वैसे ये स्टेप फंक्शन है. So it is defined as del theta x is equal to 1 when x is greater than 0 and is equal to 0 when x is less than 0. Now if it is not defined at x is equal to 0, अगर मान लें ये x is equal to 0 पे ना डिफाइन होके कहाँ पर डिफाइन है, x is equal to a पे, तो ये भी सेम टू सेम होगा. यहाँ पे x is equal to a पे 1 वैल्यू, so when x is greater than a it is 1 and x is less than a is equal to 0. So theta x minus a is equal to 1 when x is greater than a and is equal to 0 when x is less than a. Now derivative of step function. Derivative of step function theta x is equal to delta x, that is Dirac delta function, and the derivative of translated step function, that is theta x minus a, is delta of x minus a. Next is Fourier transform and the inverse Fourier transform of Dirac delta function. Fourier transform, तो सबसे पहले हम लोग Fourier transform को डिफाइन करेंगे. Fourier transform कुछ इस तरह से होता है, fs is equal to f of fx which is equal to 1 by root 2 pi minus infinity to plus infinity fx e to the power minus I s x. एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब हम लोग चेंज कर रहे हैं इसमें. सो और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एफ एक्स इज इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा, एफ एक्स से अगर हमको एफ एस लेके जाना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एस. दोनों में देखना यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में है और यहाँ डी एस के रिस्पेक्ट में है. सो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे. तो ऑब्वियसली एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, डेल्टा एक्स. तो एफ एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ई आई एस एक्स डी एक्स. अब हम लोग जानते हैं इस तरह का फॉर्म 1 बाई रूट 2 पाई तो बाहर है, इस तरह का फॉर्म अगर हो
जो प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है या 2 कहता है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स एफ ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे डेल है एक्स का वैल्यू, क्योंकि डेल्टा एक्स कहाँ पे डिफाइन है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा, 0। सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे आई एस एक्स के जगह पे 0, सो ई आई एस 0, ई टू द पावर 0 क्या होता है, ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, सो 1/√2 पाई इसका वैल्यू हो गया। सिमिलरली फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स माइनस ए, सो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स कहाँ पर डिफाइन है, हम लोग बताए थे कि जब डेल्टा एक्स हो तो इसके टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू 0 को इक्वेट करते हैं, सो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू ए, सो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए, ये एफ है, ये एफ है, तो एफ ऑफ ए मतलब एक्स के जगह पे ए पुट करना है, तो आई एस ए, ये हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसलेटेड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। नेक्स्ट इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स माइनस ए। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है, तो पुट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है एफ एस। अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे क्या होता है, एफ एस, और एफ एस का वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, 1/√2 पाई, तो 1/√2 पाई यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, 1/√2 पाई यहाँ पुट कर दी, ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एस, 1/√2 पाई 1/√2 पाई बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एस। ठीक है, ये हो गया इनवर्स ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सिमिलरली एक्स के जगह पे एक्स माइनस ए, सेम टू सेम वही फॉर्म है, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पे एफ एस का वैल्यू पुट करना है, और एफ एस का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया है 1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर आई एस है, सो ई टू द पावर आई एस है, यहाँ पे माइनस दोनों का बेस सेम है, ये तो बाहर निकल गया, ये टर्म और ये टर्म बाहर निकल गया, 1/2 पाई हो गया यहाँ पे, सो ई टू द पावर माइनस कॉमन ले दोनों के बीच में, एस भी कॉमन, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए डी एस। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग देखें, तो ध्यान देना है कि इस तरह का जो फंक्शन होता है इसमें s किसके साथ मल्टीप्लाई है, s मल्टीप्लाई है x माइनस ए से, सो यहाँ पे डेल्टा x माइनस ए होगा, ना कि s। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग को देखना है, यहाँ पे e टू द पावर i k1 माइनस k2 x dx है, तो x किसके साथ मल्टीप्लाई है, k1 माइनस k2 के साथ, सो और लेकिन यहाँ पे 1/2 पाई का टर्म तो नहीं है, तो 2 पाई ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और डेल्टा क्या होगा, जैसे यहाँ पे डेल्टा x माइनस एक यहाँ से आया, यहाँ पे x माइनस ए से, मतलब s के अलावा टर्म, तो x के अलावा टर्म यहाँ पे क्या है, k1 माइनस k2, तो k1 माइनस k2, तो इसका वैल्यू होगा 2 पाई डेल्टा k1 माइनस k2। कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं, 4 प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है 0 to 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर डेल्टा x माइनस 2 dx, इसका वैल्यू क्या होगा। सो सबसे पहले देखेंगे कि डेल्टा कहाँ पे डिफाइन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो x माइनस 2 यहाँ डिफाइन इट इज़, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन होगा, और ये 2 जो है 0 और 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो अगर लाई नहीं कर रहा है तो लाइज नहीं कर रहा, तो इसका ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या होगा, 0। सिमिलरली डेल्टा एक्स ये डिफाइन कहाँ पे कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, और 0, 2 और 3 के बीच में तो लाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0। नंबर 4 में देखें कि डेल्टा x माइनस 2 में ये कहाँ पे डिफाइन कर रहा है, x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, सो इट इज़ लाइज बिटवीन 0 एंड 6, 0 6 के बीच में लाई करता है, और इसका फॉर्मूला का आंसर क्या होता है, f ऑफ a मीन्स दिस इज़ वैल्यू ऑफ 2, और ये एफ एक्स है, एफ ऑफ ए मतलब एक्स के जगह पे 2 पुट कर देंगे, सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, सो ये वैल्यू हो गया 11। नेक्स्ट नंबर 3 tan स्क्वायर एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर।
अब यहाँ इस तरह को हम लोग रेगुलर फॉर्म में एफ ऑफ ए के फॉर्म में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है, डेल्टा यहाँ पे लीनियर नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म है इसलिए लीनियर नहीं है। तो इसको फिर वही हम डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में देंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा जी एक्स समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये रूट पे डिपेंड करे कितना रूट है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स आई जी डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स आई समेशन, और ये मॉड है यहाँ पे। तो सबसे पहले जी एक्स है यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर, जी डैश फाइन का जी डैश हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेट इज़ 2x। रूट फाइन करने के लिए डेट मीन्स एक्स आई फाइन करने के लिए जी एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, 0 से इक्वेट किए, सो एक्स का वैल्यू आया प्लस माइनस पाई बाई 4। पहला रूट पाई बाई 4, सेकेंड रूट माइनस पाई बाई 4। सो पुट करेंगे एक्स माइनस पाई बाई 4 मॉड ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखते हैं जी डैश 2 इंटू एक्स के जगह पे पाई बाई 4। नेक्स्ट डेल्टा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4 2 इंटू माइनस पाई बाई 4। दोनों केस में पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्योंकि मॉड मेरा पॉजिटिव आएगा, तो पाई बाई टू को बाहर निकालेंगे तो ये 2 बाई पाई हो गया, डेल्टा एक्स माइनस पाई बाई 4 डेल्टा एक्स प्लस पाई बाई 4। अब इसको इसमें हम लोग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, इस दोनों इक्वेशन को। अब एक एक करके दोनों में डिफाइन करेंगे। तो डेल्टा एक्स माइनस 4 में एक्स कहाँ पर डिफाइन है, एक्स प्लस 4 पे, यहाँ पे एक्स माइनस 4 पे। अब ये एक्स प्लस 4 0 और पाई के बीच में लाई करता है, ये ऑब्वियसली लाई करता है, तो इसका वैल्यू होगा एफ ऑफ ए। फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, ए के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स के जगह पे पाई बाई 4। एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस पाई बाई 4 0 पाई के बीच में लाई नहीं करता है, सो इसका वैल्यू हो गया 0। 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, सो 2 बाई पाई, ये इसका आंसर होगा। सो इस तरह से डिराक डेल्टा फंक्शन और इसके प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हमारे यहाँ पर ख़त्म हुए।